territorial disorders, and according to Hammer's inputs, all the manic disorders are out of territorial anger and identity conflict. Identity conflict is in relation to female identity, and anger is out of territorial anger. So territorial anger conflict is related to male, and identity conflict related to female. In this day-to-day life, male is on the front foot of life and female is on the back foot initially in the our human territory. Now females are in front also, but initially male is on the front. That's why males are having beard on the face. What is the function of beard, you know? What is the function of this beard? Protection. Protection of what? Face. Pieces go into the history of prey and predator. How lion is attacking the Claws, with the claws. from where? Neck only. And if hairs will be there at the neck, then can he attack? Because hairs are for protection. Hairs could not be cut even by the very strong, sharp sword even, right? That's why we are having hair on the scalp also. So this beard was basically to protect the neck. That's why every male is having the. तो मेल जो है लॉइन कह सकते हैं, जो भी लॉइनस भी करती है, लेकिन लॉइन इज ऑन द फ्रंट फुट टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी की बात करें तो मेल मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज मेल इज ट्राइंग टू डिफेंड द टेरिटरी. फीमेल कैन वर्क ऑन द बैक एज अ आइडेंटिटी, वहाँ पे आइडेंटिटी मार्क करवाती है, लेकिन मेल इज ट्राइंग टू डिफेंड द टेरिटरी फ्रॉम द फ्रंट. तो लेट अस मेक अ कनेक्शन ऑफ ऑल द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स. तो जो चालू कहाँ से होते हैं टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स? स्केर फ्राइट, लेरिंग्स, देन आएगा आपका उसकी पैरेलल थ्रॉट, देन आएगा थ्रॉट के बाद आएगा आपका इधर राइट साइड पे आ जाएगा स्टमक, एंड इधर आ जाएगा नीचे थ्रॉट के नीचे आपके टुवर्ड्स लेरिंग्स चले जाएंगे हम. लेरिंग्स. तो when territory is there, as we had discussed in the morning how territory got developed, first when we had some territory, this territory or that territory of a house you can say, initially when certain kind of threat from the outer environment is there, outer and inner environment always will be there. So when externally some threat is there, then threat is reciprocated by our larynx and lungs. ठीक है, right? When this you can say threshold is taken over, next part will be your stomach to protect. Not territory is trying to be invaded. What I want to say, you invaded. First we will mark our territory by frightening by all these organs, then followed by trying to mark our territory by anger. Recall the words that we had initially shared with you. Fear is our basic emotion, and every time fear is overpowered by anger, to protect our fear we are trying to be angry. Every time when you are angry, you are in certain kind of fear. ठीक है, after fear anger is there, then that territory is marked by our stomach, then followed by anger. से भी बात नहीं बनी तो गुस्सा थोड़ा दबना शुरू हो गया, राइट? फर्स्ट मतलब मेल का पार्ट कर, क्योंकि मेल से रिलेटेड है. मेल विल डिफेंड इट्स टेरिटरी बाय ओवरकमिंग द फियर, बाय एक्सप्रेसिंग द एंगर. बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द एंगर विद इन, तो आपका तेजाब बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो गया, तो देन मॉर्सल स्टार्ट गेटिंग इन, राइट? देन फॉर ट्राइंग टू डाइजेस्ट द मॉर्सल you will need some more secretions of acid and all that thing, and gradually that thing will turn from the lesser curvature of the stomach to the duodenum and lesser duodenum ulcer होता है जहाँ पे, वहाँ तक आ जाएगा. ये सभी की सब पूरी की पूरी मार्किंग कॉर्टेक्स की है. अब एंगर से बात नहीं बनी. एज आई हैड टोल्ड यू कि एंगर गॉट सप्रेस्ड.
then we will try to mark our territory by the urinary and rectal parts, right, by feces and urine. Ultimately, invader is very strong and it has overpowered our territory, and then your territory is overpowered in the coronary arteries of your heart. This is ultimately heart गया तो सब गया. ये हैमर की इनपुट है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इंटेलिजिबल, बहुत एडमायरेबल है ये जो उन्होंने दिया. अब जो हमारा केस था यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द all the manic and depressive disorders in relation to territorial disorders. When we start engulfing the anger, person will start moving from the angry person to a irritable person and ultimately to a sad person. He will start getting depressions until we can able to express our anger, our emotions, things are out. But when we start getting it in, to ultimately that person will start going into irritation and ultimately into depression. यहाँ पे चालू होती है insanity, sadness with anger, sadness from all these process start from here only when we start suppressing the anger. तो ये हो गया stomach. और stomach से anger से male could not able to mark his territory. Then he switched on to the other part of the rectum, because territorial disorders in relation to all these depression and mania are where two-sided scale is there. याद आपको कि नहीं भूल गए? Constellations are there. तो इधर stomach चल रहा है, stomach से बात नहीं बनी, तो then he tried to mark his territory by the rectum, right? ठीक है, इससे बात नहीं बनी, stomach, this and this is bipolar. बाइपोलर समझ में आता है कि नहीं? When male part of our territory is suppressed, depression is there, and when female part is depressed, mania is there. ये आपको समझ में आया उसमें कि नहीं आया? नहीं आया होगा, आई थिंक सो. आपको समझ में आई ये बात कि नहीं आई? आई हुई पहले कि नहीं आई? कर्मेंद्र से तनु तो आई होनी है, याद है? तो राइट साइड ऑफ our cortex is male territory and left side is female territory. Male is at first part aggressive, and when anger is not expressible, become depressive. Female is at first part depressive, and when she could not able to express her anger, she will become manic. Clear? Male उल्टा, female उल्टा. लेफ्ट साइड जो हमारी फीमेल साइड है कॉर्टेक्स की, एंड राइट साइड हमारी अकॉर्डिंग टू हार्मोनल स्टेटस मेल साइड की है. तो फर्स्ट मेल विल, इफ मेल इज मैनिकल, इट मीन्स ही इज ट्राइंग टू डिफेंड हिज टेरिटरी बाय फीमेल साइड. समझ में आई बात? जब इस बंदे को खून आ रहा था तो ही वॉज ट्राइंग टू डिफेंड हिज टेरिटरी बाय फीमेल साइड. समझ में आई बात? Now disease has moved from the mind to body. How disease will have traveled from rectum and stomach to brain, right? And brain पे जब गया तो सब खलास हो गया. Mania and insanity has overpowered the person and normal brain is taken over. By anger, suppressing the anger and expressing the anger from the female part, female territory, person is trying to defend his territory by being violent and being insane and being abnormal behaviors, right? Because as earlier we had discussed, with normal mind he cannot, with abnormal mind he can. And with the reversal of all these phenomena, things will start appearing at stomach and rectum. Mind it, this is the thing that what I want to discuss with you. Now disease has traveled from the brain to the stomach and the rectum, and please try to avoid all these persons to take antacids, otherwise things will move upon again back. ये उनको मना कर देना, नहीं तो ये फिर वापसी मारेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रेक्टम का मैं और बोलता था मैं दवाई ले लूँ, मैं नहीं लेनी इसके लिए दवाई, नहीं तो तेरा वापस आएगा. तो दैट्स वाई वी विल एबल टू हैंडल हिज दिस थिंग आल्सो. This was the whole phenomena. Every disease of constellation is like that.
मेनली हमारे पास मेनिया ही आता है जहाँ डिप्रेशन आते हैं, लेकिन बाकी जो है रिलेटेड टू जैसे ऑटिज़म है या फिर और कॉन्स्टलेशन के साथ रिलेटेड किडनी की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी भी कई बार कॉन्स्टलेशन में चली जाती है, तो फिर रिलेटिवली यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। किडनी की कॉन्स्टलेशन में क्या आता है? एमर इज़ अगेन लाइक ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट सभी लोग नहीं पढ़ते उतना ध्यान से, समझ में भी नहीं आता, समझ में नहीं आता फिर छोड़ देते, जैसे हम ऑर्गन छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट नहीं समझ आता। जैसे सर इसमें अभी आपने बताया कि मेल जो है पहले एग्रेशन से डिफेंड करेगा फिर डिप्रेशन में जाएगा, ये हमेशा है, हमेशा ऐसे ही है। और जो हार्मोनी स्टेटस की बात उसमें लिखी जाती है, अगर हार्मोनल स्टेटस तो आएगा ही आएगा ना, अगर मेल है तो ना, पहले बात हमने क्या कंडीशन ही पहले अप्लाइड, अगर मेल है तो उसमें दो पार्ट लिखा है ना, मेल का नॉर्मल और मेल का इफेमिनेट, वो तो उल्ट जाएगा ना उसमें, वो तब मैंने अभी तब नहीं बताया, उसके साथ बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। इसलिए कंफ्यूजन। हाँ, उसके साथ अभी इतना ही समझो, अब इसके बाद बाकी समझना, फिर समझ में आ जाएगा। जब सॉरी उसका हार्मोनल स्टेटस उल्टा है तो इम्पैक्ट विल बी ऑन द अपोजिट साइड। अगर मेल इज़ फेमाइन तो फर्स्ट इम्पैक्ट विल बी ऑन द दैट साइड एंड अदरवाइज वैसा वर्सा। वो इसकी पहली स्टेट समझने के बाद फिर आपको वो समझ में अपने आप आ जाएगा। और सर मान लीजिए जितना हमें समझ में आ गया कि पहला पार्ट जो है एग्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, फिर उसके बाद मतलब उसका अभी डिपेंड करेगा, हाँ, मतलब पहला पार्ट मेल ने जो डिफेंस करना है वो करना है नॉर्मल, जब हेल्थ में है तो उसने करना है एंगर से। लेकिन जब एनवायरनमेंट ने उसका एंगर दबा दिया, मान लीजिए फादर है उसका डिक्टेटर, तो एंगर नहीं निकलेगा, लाइकोपोडियम है सामने, जब पल्स स्टिल है तो एंगर दब गया, तो देन ही विल स्टार्ट टेकिंग द एंगर इन। ठीक है, फादर ने और दबाया तो टेरिटरी और बैठ गई, रेक्टम पे चला गया। अब यहाँ पे दवाइयाँ खाई तो ये चढ़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनली चढ़ गया माइंड को। हम तब की बात कर रहे हैं कि डिजीज़ कोर्स इन कैसे कर रही है, कोर्स इन ऐसे करेगी। पर जब दोनों चीज़ें एक्टिव हो गई तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, एलोपैथी कैसी ली हुई है या होम्योपैथी तो नहीं ली हुई। बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट विल इन ऑल दी स्टेट्स पेशेंट विल कम टू अस इन डिप्रेशन and we'll start treating him for depression, and ultimately came to know after 1 year or 2 years he was first time in aggression, he went into depression out of the allopathy। तो आपने इसको रिवर्स कर दिया। तो from the beginning we have to know from where things has started, चालू कहाँ से हुआ, डिप्रेशन से हुआ कि एग्रेशन से हुआ, भाव कौन सी टेरिटरीज की पहले जिसने रिएक्ट किया, कौन सा पोल पहले एक्टिव था। तो स्टार्टिंग ऑलवेज for male it will be from depression to aggression, for female it will be from aggression to depression, for female। हाँ, जब उसमें जाएगा मेनिया में जाएगा, बताया तुमने पहले, बताया ना कि फीमेल इज सबमिसिव फर्स्ट देन एग्रेशन आएगा ना। हाँ, बट व्हेन शी बिकम इंसेन और मैनिक शी विल बी मैनिक फर्स्ट देन वेंट इनटू डिप्रेशन। कोर्स बता रहा हूँ, बीमारी कैसे आएगी, बीमारी पहले फीमेल को मेनिया आएगा, मेल को पहले डिप्रेशन आएगा, जो कोर्स इन हो रही डिजीज ये बता रहा हूँ। क्लियर? हाँ सर, ज़्यादातर तो जो बाइफेजिक है, बाइपोलर, उसमें तो ये चलता रहता तो है। एक साइड से दबाया उधर गया, उधर से दबाया फिर इधर गया, ये एलोपैथी कर रही है ना फिर ये काम। तो होम्योपैथ भी करेगा, क्योंकि अगर वो समझेगा नहीं कि रूट इन कहाँ से हुआ, वो भी करेगा, वो पहले डिप्रेशन को ट्रीट करेगा या फिर एग्रेशन को ट्रीट करेगा, तो इधर उधर घूमता रहेगा, ये शिफ्टिंग होता रहेगा उसको। तो भले ही वो कितना ही सीवियर डिप्रेशन पार्ट हो, हमें उसको नहीं छूना है, हमें ये दोनों पोल पूरा को- समझना है, पोल इसको के पोल को समझ। पूरा समझना है कि एक पोल में चलता है कि दोनों में चलता है। तो ये जो लड़का था ये पहले डिप्रेशन में गया देन मेनिया में गया, जो कोर्स इन इसका है बीमारी का। तो हमारे पास मेनिकल स्टेट में आया, तो ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड हिज टेरिटरी बाय द फीमेल टेरिटरी। तो सर वहाँ पे वो स्टेट लेना है नहीं, अगर सीवियर जैसा उसका मेनिक स्टेट था, लेना क्यों नहीं लेना, हाँ, तो वो पार्ट तो वो बात है कि लेना तो वो है, डिप्रेशन का पार्ट भी लेना है, ये पार्ट भी लेना है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि हमारे पास बंदा आया डिप्रेशन में और बाद में 6 मंथ के बाद पता चला कि पहले ये मैनिक था, अभी डिप्रेशन में गया, तो आपने इलाज कहाँ से चालू किया, डिप्रेशन से। डिप्रेशन से। ये कह रहा हूँ मैं कि जब उल्टे फेज में आएगा तो कई बार आप उसको रॉन्ग उठा लेंगे। मैंने बहुत कई बार कई केसेस बहुत देर के बाद देखे, क्योंकि बच्चों ने केस लिए होते तो उन्होंने लिया डिप्रेशन,
तो थिंग विल स्टार्ट विद द डिप्रेशन, लेटर ऑन केम टू नो कि डिप्रेशन नहीं था, पहले एग्रेशन था उसको। Otherwise, in layman language, every manic disorder and every insanity person is said to be depression. सभी डिप्रेशन ही बोलते हैं ना, लेकिन एक मैनिक है, एक डिप्रेशन है, दो पोल है इसके।